عظیم قوم بننے کے لیے عظیم کردار چاہیے، اعلیٰ اخلاقی اقدار، نڈر اور انصاف کے اصولوں پر یقین رکھنے والی قیادت ہی ملک کو آگے لے کر چل سکتی ہے۔ ہمیں نوجوانوں کو اخلاقی اعتبار سے مضبوط بنانا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا سوہاوا میں القادر یونیورسٹی کی تقریب سے خطاب۔ بہترین معاشی پالیسیز کے باعث کاروباری ہفتے کے پہلے دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس 45,330 کی سطح پر پہنچ گیا۔ انڈیکس میں 1,215 پوائنٹس کا اضافہ۔ سرمایہ کاروں کا حکومتی پالیسیز پر بھرپور اعتماد کے باعث اسٹاک مارکیٹ کے تجارتی حجم میں بھی بے پناہ اضافہ دیکھا گیا۔ بھارت میں ایک سال سے زیادہ کی جدوجہد کے بعد کسان جیت گئے، لوک سبھا نے متنازعہ زرعی قوانین واپس لینے کا بل منظور کر لیا۔ بھارتی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے زرعی قوانین واپس لینے کا بل پیش کیا، جسے بغیر کسی بحث کے منظور کر لیا گیا۔ مودی سرکار نے اپوزیشن کو کسانوں کی طرف سے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ پاکستان میں کرونا ویکسینیشن لگانے کا عمل جاری، 5 کروڑ افراد کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس کی نئی قسم سے بچاؤ کے تمام اقدامات مکمل ہیں۔ چیئرمین NCOC اور وفاقی وزیر اسد عمر، معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کی پریس کانفرنس۔ اور PTI حکومت نے مختصر مدت میں صحت کے شعبے میں انقلابی اصلاحات متعارف کرائیں۔ خیبر پختونخوا ملک کا پہلا صوبہ ہے جس نے عوام کے لیے یونیورسل ہیلتھ کوریج کا احاطہ کیا۔ وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا کی پاکستان ٹیلی ویژن سے خصوصی گفتگو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، ان خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر سعود تمہارے لیے اتنا ہی اہم ہے تو میرے لیے اہمیت اس بات کی ہے کہ یہ خطہ ایک قابل شخص کے ہاتھ میں ہو۔ ظلم اور خوف کا خاتمہ ہو چکا ہے، انصاف پھر اپنے راستے پر گامزن۔ یہ اچھی شراکت نہیں ہے، مجھے ایسے ہی سردار کی ضرورت ہے۔ دھوکے بازی ہے یہ، تعلقات بڑھانے ہوں گے تمہیں ان کے ساتھ۔ پورے اناطولیہ کو راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا۔ بزدل ہر روز اور بہادر صرف ایک بار مرتا ہے۔ آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا ارطغرل سردار۔ ہمارا استعمال کر کے اس نے الن جنگ سے دوستی کرنے کی کوشش کی۔ ہم وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں جو دوستی کی نیت سے آگے بڑھے، اور جو دشمنی سے بڑھے اسے کاٹ دیتے ہیں۔ ڈھونڈ کر لاؤ اسے۔ کیبنٹ آور کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اخلاقیات پر قائم معاشرہ ہی ترقی کی ضمانت ہے۔ ہمیں نوجوانوں کو اخلاقی اعتبار سے مضبوط بنانا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلے بغیر ہم اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ جہلم کے علاقے سوہاوا میں القادر یونیورسٹی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ عظیم قوم بننے کے لیے عظیم کردار چاہیے، اعلیٰ اخلاقی اقدار، نڈر اور انصاف کے اصولوں پر یقین رکھنے والی قیادت ہی ملک کو آگے لے کر چل سکتی ہے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ القادر یونیورسٹی میں اسلامی اسکالرز اور فیکلٹی ارکان سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کوئی بھی معاشرہ اخلاقی اقدار کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔
जो कौमी इखलाकियात का दामन हाथ से छोड़ती हैं वो तनज़्ज़ुली का शिकार होती हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा तबक़ाती तालीमी निज़ाम तरक्की की राह में रुकावट है। यकसा निसाब तालीम और आला इखलाकी इक़दार की तरबियत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा अजीम कौम का कैरेक्टर नहीं है। जब तक हम सीरत नबी पे नहीं चलेंगे तब तक हम वो मुकाम नहीं हासिल कर सकते जो इलामा इकबाल का ख्वाब था। अजीम कौम बनने के लिए अजीम कैरेक्टर चाहिए। सच बोलना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले कैरेक्टर की थी सादिक और अमीन, सच बोलने वाले और इंसाफ करने वाले। कोई भी लीडर बन ही नहीं सकता, रिस्पेक्ट कमांड कर ही नहीं सकता जब तक उसमें ये दो सिफतें ना हो, सच्चा आदमी और इंसाफ करने वाला आदमी। वज़ीर आज़म ने कहा कि आला किरदार की हामिल लीडरशिप ही कौम का मुस्तकबिल संवार सकती है। इक़्तिदार का हसूल ज़ाती मफाद की बजाय कौम के वसी तर मफाद के लिए होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लीडरशिप का कॉन्सेप्ट दिया था, वो हमने अपनी यूथ को देना है। कभी भी एक खुद गर्ज आदमी लीडर नहीं बन सकता। जब एक लीडर बन के एक अथॉरिटी पे आके मुल्क का पैसा चोरी करना शुरू कर देता है, उससे बड़ा अल्लाह का अजाब किसी इंसान पे नहीं आ सकता। लीडर हमेशा अपनी ज़ात से निकल के बड़ा सोचता है। कभी बुज़दिल इंसान लीडर नहीं बन सकता। वो जो एकदम लीडर्स की बारिश हुई थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने के बाद, एक से एक बड़ा लीडर बन गया था, क्योंकि उनके खौफ चले गए थे, बड़ी सोच थी, उनकी ज़ात से बाहर निकल गए थे और सच्चे लोग थे और इंसाफ करने वाले लोग थे। ये हमने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करना है ताकि हमारे मुल्क में भी लीडर्स निकले। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवान नस्ल ज़हनी इंतशार का शिकार है, जिसकी वजह अपनी असास और मकसद से दूरी है। उन्होंने कहा कि इस्लामी तालीमात और जदीद अलूम का इम्तिजाज ही असल कामयाबी की ज़मानत है। इस्लामोफोबिया के मामले पर वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें यकजुबान होकर एक मौसर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है ताकि मगरिब अपने रवैयों में तब्दीली लाने पर मजबूर हो। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने अलकादिर यूनिवर्सिटी सोहावा में नए एकेडमिक ब्लॉक्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने नए तामीर किए गए एकेडमिक ब्लॉक्स के मुख्तलिफ हिस्से भी देखे। ब्रीफिंग में उन्हें बताया गया कि एकेडमिक ब्लॉक की मौजूदा इस्तेदाद 500 तलबा और तालिबात है, जिसे मरहलावार बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर तलबा से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मदीना की रियासत के असूलों पर चलकर हमने पाकिस्तान को दुनिया के लिए मिसाल बनाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अलकादिर यूनिवर्सिटी के तालीमी प्रोग्राम में तलबा और तालिबात में सीरत तैयबा की रोशनी में कायदाना सलाहियतों, किरदार साजी और तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने एकेडमिक ब्लॉक के अहाते में पौधा भी लगाया। अलकादिर यूनिवर्सिटी जैसी दरसगाहें नौजवान नस्ल को असरी अलूम के साथ साथ दीनी तालीम, तसव्वुफ और आला इखलाकी इक़दार से रूशनास करवाने का अहम जरिया हैं। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सोहावा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि आला मेयार की तरबियत से हवाई अड्डों की हिफाजत और मुसाफिरों की रहनुमाई करने में ASF के अमले की कारकर्दगी मिसाली हो रही है। दौर हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहना है। वो कराची में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के बेसिक एविएशन सिक्योरिटी कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे। मजीद तफसील जानते हैं ज़मीर अब्बास से। तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि अफगानिस्तान में सफारती अमले के इनखला में पाकिस्तान के किरदार को आलमी सतह पर सराहा गया है। पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर अमले के बेहतरीन रवैयों के नतीजे में बाहर से आने वाले मुसाफिरों की सोच मुस्बत हो रही है। पासिंग आउट परेड में खवातीन की शमूलियत बाइस फख्र है। जब अफगानिस्तान से डिप्लोमेट्स और बैनुल अक़वामी अफराद के इनखला का पेश आया, सारी दुनिया ने तारीफ की, पाकिस्तान की तारीफ की। बेइंतहा मुझे खुशी हुई कि इन लड़कियों ने भी शाना बशाना मिलकर एक तंजीम के अंदर शिरकत की, एक तंजीम की ट्रेनिंग हासिल की। मुल्कों की जो पहला एक्सपोजर है वो कभी कभी एयरपोर्ट पर नजर आता है। लोग मुल्क के मुताल्लिक अपनी राय बनाते हैं तो वहां से बनाना शुरू करते हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि अमले की आला और बेहतरीन तरबियत के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग एकेडमी तैयार की जा रही है। इससे पहले ASF के चाको चौबंद दस्ते ने सदर मुमलिकत को सलामी पेश की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने परेड का मुआयना किया। ASF के बेसिक एविएशन सिक्योरिटी कोर्स के 49वें बैच में 72 खवातीन समेत 558 कैडेट्स पास आउट हुए। सदर मुमलिकत ने कोर्स में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में मेडल्स और शील्ड तकसीम की। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
नाजरीन, बेहतरीन मौशी पॉलिसीज़ और बैन अल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों की कमी के असरात के बायस कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। 100 इंडेक्स 45,330 की सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स में 1,215 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सरमायाकारों का हुकूमती पॉलिसीज़ पर भरपूर एतमाद है। इसके बाद स्टॉक मार्केट के तजारती हजम में भी बेपनाह इजाफा देखा गया है। ऑटोमोबाइल, सीमेंट, केमिकल के शेयर्स की कीमतों में तेज़ी रही। स्टॉक मार्केट में 26 करोड़ 82,36,000 रुपये से ज़्यादा के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 10 अरब 90 करोड़ 26 लाख रुपए से ज़्यादा बनती है। 264 कंपनीज़ के शेयर की कीमतों में इजाफा, 85 के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 21 कंपनीज़ के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माशी तज्ज़ियाकार नदीम मौलवी साहब। आप गहरी नज़र रखते हैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, काफ़ी खबरें भी आपके पास होती है। नदीम मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को। और जानना ये चाहते हैं कि आज पहला दिन कारोबारी हफ्ते का और ज़बरदस्त तेज़ी, बेहतरीन माशी पॉलिसीज़ और चूँकि एक्सपोर्ट्स की जानिब हुकूमत तवज्जो भी दे रही है, तो समझ रहे हैं एक्सपोर्ट्स की वजह से हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर एतमाद ज़ाहिर कर रहे हैं इन्वेस्टर्स। सबसे पहली बात, इमरान खान साहब की बात जो है वो आज तस्दीक हो गई, जो कि इमरान खान साहब ने कहा था कि ये जितनी महंगाई हो रही है इंटरनेशनल ऑयल मार्केट की वजह से हो रही है। आज आपने देखा इसी बात को तस्दीक करते हुए इन्वेस्टर्स बड़े पुरजोश तरीके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जनाब इंटरनेशनल ऑयल मार्केट नीचे आ रही, और जैसे ही इंटरनेशनल ऑयल मार्केट नीचे आती है तो आपको पता है ऑयल का इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे आता है। तो बहुत ही आइंदा आने वाले दिनों को बहुत खुशाइन समझ रहे हैं। अगर ये मुस्तकिल तौर पे इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में दबाव बरकरार रहा तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर। दूसरी जानिब इन्वेस्टर्स ने ये भी देखा कि जनाब सऊदी अरेबिया से जो हमारे पास $3 बिलियन के करीब पैसे आएंगे, उससे भी क्या होगा, हमारे रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, और रिजर्व्स बढ़ते ही फिर ये होगा कि रुपए की कदर में इजाफा होगा और डॉलर की कीमत में कमी होगी। ये इसके अलावा जो वजूहात और भी इन्वेस्टर्स, क्योंकि एक के बाद एक जो है अच्छी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के लिए, तो एक और खबर जो बनी है वो है कि जनाब पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो है तिजारत में इजाफा देखा जा रहा है, क्योंकि आज जो दोनों हुकूमती सतह पे कुछ बातचीत हुई है जिससे दोनों हुकूमतों ने एग्री किया है कि हमें तिजारत मजीद बढ़ानी चाहिए। तो हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं, तो इन्वेस्टर्स बड़े पुरुमीद हैं, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेशनल ऑयल मार्केट बहुत तेज थी, मार्केट में काफी दबाव था, तो बहुत सी हमारे जो शेयर मार्केट में शेयर्स हैं वो इतने सस्ते हो चुके हैं कि हर इन्वेस्टर अब चाह रहा है कि इसके अंदर इन्वेस्ट करके इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। ठीक है। अच्छा नदीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बूम आया है कारोबारी हफ्ते के पहले दिन, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल, सीमेंट और केमिकल के शेयर्स की कीमतों में भी तेज़ी आई है। मुझे ये बताइएगा कि किस कदर आप ज़रूरी समझते हैं इन मौशी पॉलिसीज़ के तसलसल को, ताकि इसकी जो रफ्तार है ये इसी तरह से बरकरार रहे। देखिए, असल चीज ये है कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज है वो वक्त के साथ साथ चलती है। अब आप देखें, यही वजह है कि इन्वेस्टर्स जो है जैसे ही वक्त और हालात को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। जैसे इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में जब दबाव आया था तो इमरान खान साहब ने कहा था, ऑपोजिशन इसको मान नहीं रही थी, मगर अवाम और इन्वेस्टर्स ने आज साबित कर दिया जो इमरान खान साहब ने कहा था वो दुरुस्त था। अच्छा, दूसरी जानिब अगर हम देखें, अब पॉलिसीज की गाड़ियों की बात करें, आज गाड़ियों की इंडस्ट्री में क्यों तेजी आई, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि जनाब इंपोर्ट, गाड़ियों की इंपोर्ट को जो है उसके ऊपर रोकथाम किया जाएगा, कमी करेंगे, ताकि यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री जो है वो मजीद बढ़े। मगर चूंकि लोकल इंडस्ट्री पे भी दबाव आता रहता है, हमारे यहाँ डिमांड ज्यादा होती है, तो इन्वेस्टर्स बड़े पुरुमीद होते हैं कि ये वक्त के साथ साथ जो पॉलिसीज में तब्दीली आती है मुल्क की बेहतरी के लिए, वो मईशत को बेहतर करेगी, आज नहीं तो कल। क्योंकि मईशत के अंदर जब भी दबाव आता है, हम मैक्रो लेवल पे देखते हैं, दुनिया भर की मईशतों को देख रहे होते हैं, उसका इम्पैक्ट जाहिर है पाकिस्तान में भी आता है। तो ये जो पॉलिसीज हैं, जैसे कि अब आप देखें कि हम बात करें तुर्की की, पाकिस्तान ने अच्छे ताल्लुकात किए रशिया के साथ, मुख्तलिफ ममालिक में एक ब्लॉक बन रहा है, और उस ब्लॉक के जो मेन किरदार जो अदा कर रहे हैं वो है पाकिस्तान। चीन हो, रशिया हो, सऊदी अरेबिया हो, जितने भी ममालिक हैं, इनके साथ हमारा एक नेटवर्क बन रहा है जो आइंदा चंद सालों में
ہمیں ایک بہت مضبوط ترین ملک بنا دے گا. اس کے علاوہ اگر یہ بھی دیکھیں کہ ہم اب بات کریں ہمیں پریشانیاں جو آ رہی ہیں وہ موجودہ بجلی کی قیمتوں میں, پیٹرول کی قیمتوں میں, تو لانگ رن پہ عمران خان صاحب نے کیا کیا, پلاننگ کی ہے ڈیم بنانے کی, کیونکہ آج تک کسی حکومت میں یہ ڈیم بنانے کا سلسلہ نہیں رہا تھا. اب جب ڈیم بنے گا تو بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی آئے گی, پانی کے مسئلے مسائل بھی کم ہوں گے. تو اگر ہم 10 سال کی سوچیں تو 10 سال بعد ہم انہی پالیسیز کی وجہ سے ہمارا پاکستان خوشحال ہوگا, ہمارے جنریشنز جو ہیں, جو کمنگ جنریشنز ہیں, اس کا فائدہ اٹھائیں گے. کیونکہ اس سے 70 سالوں پہلے اگر اسی طرح اگر لوگوں نے ڈیم بنایا ہوتا تو آج ہم بجلی کی کرائسس میں نہیں آتے. آج بجلی کی کرائسس میں ہم اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ہم ہائیڈرل پاور پلانٹس کی طرف نہیں جا سکتے, ہمارے پاس پانی ضائع ہو جاتا ہے, فصلوں میں پانی نہیں پہنچتا. تو یہ جو ڈیمز بنا رہے ہیں جو کہ آج شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا, مگر آپ یاد رکھیں کہ ایز این اکانومسٹ یا جو ایز این اینالسٹ جو ہوتے ہیں, تجزیہ کار یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ چند سالوں میں جب یہ ڈیم بن کے پاکستان میں نمایاں طور پہ نظر آئیں گے تب اس کے اثرات نظر آئیں گے. جی بہت شکریہ ندیم مولوی, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, معاشی تجزیہ کار ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کر رہے تھے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور لیے چلیں گے آپ کو گلگت بلتستان, جس کی قدرتی حسن سے مالا مال یہ خطہ ہے, ملکی سیاحت کے شعبے میں کلیدی اہمیت رکھتا ہے. اور اس علاقے کی تاریخی پس منظر اور سیاحتی اہمیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں نثار مہدی کی یہ رپورٹ. گلگت بلتستان پاکستان کے شمال میں واقع ایک خوبصورت علاقہ ہے جو تاریخی طور پر مختلف خود مختار ریاستوں پر مشتمل تھا. 1848 میں کشمیر کے ڈوگرا راج نے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا. 1947 میں خطے کے غیور عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی اور گلگت بلتستان کو پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا. گلگت بلتستان ایک انتہائی حسین علاقہ ہے. یہاں کے بلند و بالا پہاڑ, خوبصورت وادیاں اور دلکش مناظر دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتے ہیں. دنیا کے 3 بلند ترین اور دشوار گزار پہاڑی سلسلے قراقرم, ہمالیہ اور ہندوکش یہاں آ کر ملتے ہیں. دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 بھی اس خطے میں واقع ہے, جبکہ دنیا کے 3 سب سے بڑے گلیشیئرز بھی اسی خطے میں موجود ہے. 8000 میٹر سے بلند 5 چوٹیوں کے مسکن گلگت بلتستان میں 50 ایسی چوٹیاں ہیں جو 7000 میٹر سے بلند ہیں. یہاں کا موسم, ثقافت, رسم و رواج, ہر چیز منفرد ہے اور یہاں کے لوگ انتہائی سادہ اور مہمان نواز ہیں. پاکستان کا یہ علاقہ ہر لحاظ سے ایک مکمل سیاحتی مقام ہے جس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں. نثار مہدی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے تحت ملک میں سیاحتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام ہو رہا ہے. ملک بھر میں جنگلات کی بحالی سے لے کر نئے سیاحتی مقامات کے قیام کے علاوہ سیاحت کے لیے درکار بنیادی ڈھانچے کو بھی ترقی دی جا رہی ہے تاکہ سیاحت کے فروغ سے معاشی سرگرمیاں اس میں تیزی لائی جا سکے. اس علاقے میں سیاحت کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں وقت دیا ہے گلگت بلتستان کے وزیر سیاحت, وزیر ثقافت, کھیل اور امور نوجوان راجہ ناصر علی خان صاحب نے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام. آپ کا شکریہ ہمیشہ سے پی ٹی وی نے اس علاقے کی پروموشنز کے لیے، اس علاقے کو لوگوں کے نظروں میں لانے کے لیے جو خدمات پی ٹی وی کی طرف سے ہیں، میں پی ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. راز صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کے وقت. ونس اگین آج کا پہلا سوال جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں وہ اوبویسلی سیاحت کے حوالے سے ہی ہے. سیاحت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں قدرتی حسن سے مالا مال اس خطے کو. بتائیے گا سیاحت کے فروغ کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں گلگت بلتستان حکومت کی جانب سے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جی، میں ایز اے ٹورزم، اسپورٹس، کلچر، آرکیالوجی، میوزیم اینڈ یوتھ افیئر منسٹر، لیکن ہماری پوری فوکس اس وقت گلگت بلتستان کے سیاحت کے اوپر ہے، کیونکہ اگر ہم صحیح معنوں میں گلگت بلتستان کے سیاحت کے اوپر اگر کام کریں تو یہ علاقہ انشاءاللہ پاکستان کے وہ خوشحال علاقوں میں سے ہو سکتا ہے جس کی ایک اچھی خاصی انکم جنریٹ ہم کر سکتا ہے صحافت کے ذریعے، سیاحت کے ذریعے. سیاحت گلگت بلتستان کے لیے بیک بون آف اکانومی کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے. سیاحت میں اب تک نیگلیکٹڈ ہونے کی وجہ سے اس پورٹ فولیو کے اوپر آج تک کی حکومتوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے ہمیں اس وقت کافی چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، خصوصاً انفراسٹرکچر کے اوپر، خصوصاً اس علاقے کی کنیکٹیویٹی کے اوپر. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. جتنا یہ علاقہ خوبصورت ہے، اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی حسن سے مالا مال کیا ہے، اتنے پوٹینشل ہے اس علاقے کی، لیکن ابھی تک وہ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے نظروں میں نہیں ہے. ہمارے پاس تقریباً 40 سے 50% علاقے ہی ہیں اس وقت جو لوگوں کے نظروں میں. کچھ جگہ گنے چنے جگہ ہیں جو اب تک لوگ جا کے ان علاقوں کا نظارہ کرتے ہیں، لیکن 50% ایسے علاقے ہیں جو اب تک لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہیں. ہماری پوری فوکس ہے، کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ان علاقوں کو بھی دنیا کے نظروں میں لایا جائے. ان کے لیے بہترین سڑکیں ہم دے رہے ہیں. اس دفعہ ہماری پروجیکٹس میں ADP میں کافی اچھے خاصے رقم ہم نے ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ویلی روڈز کے اوپر رکھا ہے. اس کے علاوہ ہم جو فوکس کر رہے ہیں کنیکٹیویٹی کے اوپر، کے ساتھ ساتھ ہم نے جو فوکس کی ہے انفراسٹرکچر کے اوپر. جو سڑکوں کی حالت جو تھی پچھلے وقتوں میں، لنک روڈز کی، اور سب سے جو اہم چیز ہے جو ہم اس وقت حکومت جو کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاؤن پلاننگ کے اوپر ہے. کیونکہ جب جو مشروم گروتھ اس وقت گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے اس کو ہم روکنا چاہ رہے ہیں. ایک پراپرلی ایک ٹاؤن پلاننگ کے تحت ہم اس کو لانا چاہ رہے ہیں، جس میں آنے والے 20-25 سال یا 50 سال کے بعد کی گلگت بلتستان کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں بہت ضروری تھی. اور پہلی دفعہ ہم گلگت بلتستان میں ٹورزم اتھارٹی ہم بنا رہے ہیں. اس علاقے کو ہم انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پلاسٹک فری زون قرار دینا چاہ رہے ہیں. اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ٹورزم کو ایکو فرینڈلی بنائیں. تو یہ ساری کوششیں ہماری ہیں. اس وقت ہم گلگت بلتستان میں ایک ہاسپٹیلٹی انسٹیٹیوٹ اللہ کے فضل و کرم سے پرائم منسٹر کے خصوصی توجہ سے اپروو ہوا ہے. بہت بڑی ایک انسٹیٹیوٹ ہے ہاسپٹیلٹی کا. اس کے اوپر فیزیبلٹی سٹیج میں ہے، کنسلٹنٹس ہائر ہوئے ہیں. سیاحت کو ہم اپنے علاقے کے نوجوانوں کے مستقبل بنانا چاہتے ہیں. جو ایئرپورٹ ہے اس وقت اسکردو میں، وہ پاکستان کا بیزیسٹ ایئرپورٹ رہا اس دفعہ کے، ایون کووڈ کی وجہ سے بھی. ہمارے لوگوں کی معیشت بہتر ہوئی. 2-3 سال کووڈ کی وجہ سے جو لوگ لاسز میں جا رہے تھے انہوں نے کہا جی اس لاس کو چھوڑ کر ہم نے ڈبل میں کمائی بھی کی، ہم نے اپنے ایک انکم بھی جنریٹ کیا. گاڑیاں چلی، لوگوں کے ہوٹلز میں بڑے اچھے کام ہوئے، ریسٹورنٹس چلیں، دکانوں کے اوپر کافی اچھی سیل ہوئی. تو اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں سیاحت گلگت بلتستان کے لیے ایک بہترین انڈسٹریل ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا راجہ ناصر علی خان صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں کی ترقی کی اگر بات کریں تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کو آگے لانے کے لیے کس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میرا پیشن ہے کہ میں یوتھ اور اس کو پروموٹ کریں ہمارے علاقے کی یوتھ کے لیے. اس کے لیے پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں روزگار اسکیم کا جو کنسپٹ ہے اس کو انٹروڈیوس کیا، بہت ہی سکسیسفل رہا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے SCO کے ساتھ مل کر وہاں پہ IT پارکس انٹروڈیوس کی، وہ بہت سکسیسفل رہا. بہت سارے لوگوں نے فری لانسرز اور کنٹریبیوشن، اس میں جو لوگ جاب کے لیے ان کے لیے اپرچونیٹی نہیں مل رہا تھا وہی لوگ
अपने साथ 5-5, 6-6 लोगों के लिए जॉब प्रोवाइड की उन लोगों ने। ई मार्केटिंग को हमने फोकस किया, ई बिज़नेस को हमने फोकस किया, ई कॉमर्स को हमने फोकस किया। गिलगित के सक्सेसफुल के बाद हम इंशाल्लाह इस वक्त स्कर्दू में IT पार्क को इंट्रोड्यूस करने चाह रहे हैं, ई रोज़गार को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। गिज़र में हम अभी इंशाल्लाह सून ओपन कर रहे हैं IT पार्क। दियामर के अंदर हम इंशाल्लाह सून IT पार्क इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ई रोज़गार को हम वहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे नौजवानों के लिए एक और खुशखबरी है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में 2 नौजवान मरकज़ बनने जा रहे हैं, मराकज़। उनमें हम अपने नौजवानों के फ्यूचर के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम उसमें फ़ोकस कर रहे हैं कि कैसे हम अपने यूथ को प्रमोट करें, क्योंकि एक कामयाब यूथ ही उस कामयाब कौम बन सकता है। तो हम फोकस कर रहे हैं कि हमारे यूथ के फ्यूचर के ऊपर, इनका अगर मुस्तकबिल रोशन होगा तो गिलगित बल्तिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हो सकता है। राजा साहब, एक बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ और उसका बड़ा चर्चा हो रहा है हेली सर्विस के हवाले से। ये सयाहों के लिए हेली सर्विस क्या है, थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। देखें जी, हेली सर्विस एक सफारी है। इसका कंसेप्ट सबसे पहले मैं इसमें PIA का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस दफ़ा, स्पेशली CEO अरशद मलिक साहब का। इन्होंने एक बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन इस इलाके की टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए की, जिसमें इन्होंने एयर सफारी PIA ने शुरू की इस दफ़ा। समर्स में, गर्मियों में यहाँ से लोग जाते थे स्कर्दू में और इंटरटेंट होने के बाद शाम को शंग्रीला में हाई टी के बाद वापस इस्लामाबाद आते थे। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हमने विंटर में भी एयर सफारी को इंट्रोड्यूस करना हम चाह रहे हैं। तो इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट PIA से भी की है और हमारे पाक आर्मी ने भी इसमें बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशंस हैं। हेली सर्विसेज हमेशा से, कोई पहाड़ों के ऊपर कोई हादसा हो या इस इलाके के लिए कोई भी मुश्किलात हो, हमेशा से पाक आर्मी हमारे साथ खड़े हैं। आज भी इस पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए पाक आर्मी का बड़ा हाथ है। उन्होंने वॉलंटियरली इस इलाके के लिए, इस इलाके के प्रमोशंस के लिए, विंटर टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने कहा जी एयर हेली सर्विसेज वो देंगे गिलगित स्कर्दू के लिए। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है, वो अभी हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह विदिन वीक्स। जब भी स्नोफॉल शुरू होते हैं तो लोग यहाँ से एंटरटेन होने के लिए उन इलाकों में जाएंगे, बर्फ़ के खूबसूरत मनाजर को देखने के लिए। तो ये एक खुशाइन बात है। PTI हुकूमत की पूरी फोकस इस वक्त जो इमरान खान साहब ने जो एक खुसूसी फाइनेंशियल पैकेज दिया है, वो हम कोशिश करें कि इस इलाके के फ्यूचर के लिए, कि इस इलाके को, फ्यूचर को, मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए इस इलाके की जो इश्यूज़ है, कनेक्टिविटी हो या एनर्जी का इशू हो या पावर, हाइड्रो पावर के ऊपर बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स है इस वक्त, तो इनके ऊपर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। बड़े मंसूबे इस दफ़ा PSDP से क्लियर भी हो चुके हैं, उनके परमिट भी मिल चुके हैं, इसके ऊपर काम भी हो रहा है। तो PTI हुकूमत का, खुसूसन इमरान खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके बाद हमारे की टीम कैप्टन खालिद खुर्शीद साहब के, जिनकी दिन रात की मेहनत और कोशिशों से आज गिलगित बल्तिस्तान को एक बेहतरीन पैकेज मिल रहा है फाइनेंशियल, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल को संवारेंगे। जी अच्छा, राजा साहब, अभी आपने जिक्र भी किया कनेक्टिविटी का, तो मैं उसी पर आना चाह रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान में नामुनासिब जो सेलुलर कनेक्टिविटी है उसका हमेशा बड़ा शिकायत करते हैं वहाँ पर जो सयाह जाते हैं, और यकीनी तौर पे ये सियाहती सरगर्मियों में भी एक रुकावट बनती है। तो इस सर्विस को बढ़ाने के सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है अब तक? जी बिल्कुल, मैं उसके लिए आपसे मैंने थोड़ी सी मैं डिटेल में जाना चाहूँगा। पहली दफ़ा गिलगित में ऑक्शंस हुई हैं 4Gs की। ये हमारे खालिद खुर्शीद साहब के बेहतरीन एफ़र्ट की वजह से हमने मुख्तलिफ़ कंपनियों के 4G ऑक्शंस किए हैं। उसमें टेलीनॉर अपने खदमात शुरू होने वाले हैं इंशाल्लाह सीज़न में। SCO इसमें बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रहा है। इनके खदमात हैं इस इलाके की इंटरनेट की जो सहूलियात दे रहे हैं, जहाँ पे लोगों के लिए इशू था, इवन कि हमने इस दफ़ा बेस कैंप तक वहाँ पे वाईफाई को प्रोवाइड किया। और उसके बाद द्योसाई में हमने 2-3 जगहों पे वाईफाई के यूनिट्स लगाए, लोगों ने इंटरनेट से इंजॉय भी की। और फेरीमेडो के ऊपर भी हमने वाईफाई लगवाया, वहाँ से भी लोग नेट के ज़रिए कनेक्ट हुए हैं। लेकिन बहुत सारे जगह हैं अब भी जहाँ पे SCO काम भी कर रहा है। उसके अलावा हम चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ जो हमारे प्राइवेट दूसरे हमारे इदारे हैं 4Gs के, वो भी काम करें। इसके लिए हमने इस दफ़ा ओपन 4G ऑक्शंस की, उसमें 2-3 कंपनीज मज़ीद आ रहा है। तो इससे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, अगले साल, इस साल से बेहतर आपको जो है ना वहाँ पे खदमात इंशाल्लाह मिलेंगे हमारे।
राजा नासिर अली खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को और बता रहे थे गिलगित बल्तिस्तान में। और मुझे तो आज की जितनी भी आपने बातें की उनमें सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग नाज़िया ये लगा है कि सर्दियों में भी स्नोफॉल में आप अगर चाय पीने का आपका दिल है तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ मिलकर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने एयर सफारी, हेली सफारी जो है उसका इंतज़ाम किया। आप सुबह जाएँ इस्लामाबाद से, चाय पिएँ और शाम को वापस इस्लामाबाद पहुँच जाए। तो इस सर्विस का बहुत बहुत शुक्रिया और यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे इसके लिए भी। जी बिल्कुल, और आप लोग चाय भी पी सकते हैं इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अगर सऊद तुम्हारे लिए इतना ही अहम है तो मेरे लिए अहमियत इस बात की है कि ये खित्ता एक काबिल शख्स के हाथ में हो। जुल्म और खौफ का खात्मा हो चुका है, इंसाफ फिर अपने रास्ते पर गामजन। ये अच्छी शराकत नहीं है, मुझे ऐसे ही सरदार की जरूरत है। धोखेबाजी है ये। ताल्लुकात बढ़ाने होंगे तुम्हें उनके साथ। पूरे अनातोलिया को राख का ढेर बना दूंगा। बुज़दिल हर रोज और बहादुर सिर्फ एक बार मरता है। आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा अर्तुल सरदार। हमारा इस्तेमाल करके उसने अलन जंग से दोस्ती करने की कोशिश की। हम वो हाथ थाम लेते हैं जो दोस्ती की नीयत से आगे बढ़े और जो दुश्मनी से बढ़े उसे काट देते हैं। ढूंढ कर लाओ उसे। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि भारत में ईवान ज़ेरी ने मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन वापस लेने का बिल मंजूर कर लिया है। ईवान की कार्रवाई के आगाज़ के साथ ही अपोजिशन ने हंगामा किया। इस दौरान वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने ज़रई कानून वापस लेने का बिल पेश किया, जिसे बगैर किसी बहस के मंजूर कर लिया गया। कई सियासी जमातों ने बिल पर बहस करना चाही लेकिन इसकी इजाज़त नहीं दी गई। अपोजिशन अरकान का कहना था कि हुकूमत अपोजिशन को किसानों की तरफ से बोलने का मौका नहीं दे रही। इससे पहले भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन कवानीन को वापस लेने का ऐलान किया था। नाज़रीन, अफगान हुकूमत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान दोहा में 2 रोज़ा मुज़ाकरात हुए, जिनमें अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अब्दुल गफ़ार बल्खी ने बताया कि अफगान वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी, जबकि यूरोपीय वफ़द की क़यादत अफगानिस्तान के बारे में यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे टॉमस निकलसन ने की। मुलाकात में अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद की फराहमी, सेहत सलामती और अफगानिस्तान से बाहर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए महफूज रास्ते की फराहमी पर तबादला ख्याल किया गया। यूरोपीय यूनियन के वफ़द ने कहा कि वो अफगान अवाम की मदद जारी रखेंगे और इंसानी इमदाद के लिए काबुल में दफ्तर कायम करेंगे। अफगान वफ़द ने कहा कि इंसानी इमदाद को सियासत से बालातर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखेंगे। बाद में मुज़ाकरात में कतर के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन खुद ने एक फरमान जारी किया है, जिसमें मरकजी बैंक को हुक्म दिया गया है कि वो मुल्क छोड़कर न जाने वाले साबिक हुकूमत के अहदेदारों के अकाउंट्स बहाल करे। हुकूमत ने गुज़िश्ता सितंबर में साबिक हुकूमत के अहदेदारों के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए थे। फरमान में बैंक को हिदायत की गई है कि वो साबिक हुकूमत के उन अहदेदारों को तनख्वाह अदा करे जो अब भी सरकारी महकमों में काम कर रहे हैं। मरकजी बैंक को हुक्म दिया गया है कि वो कौमी असम्बली के अरकान के अकाउंट्स बहाल करे, ताहम उन्हें तनख्वाहें अदा नहीं की जाएंगी। तज्ज़ियाकारों ने हुकूमत के इन इक़दामात की तारीफ की है और इन्हें एतमाद साजी के लिए अहम करार दिया है। चेयरमैन एनसीओसी और वफाकी वज़ीर असद उमर और मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तफसील जानते हैं फहद जावेद से। एनसीओसी में न्यूज ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का अमल जारी है। उन्होंने कहा कि अब तक 5 करोड़ से ज्यादा अफराद को मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है, जबकि 3 करोड़ से ज्यादा अफराद को वैक्सीनेशन की एक खुराक दे दी गई है। असद उमर ने कहा कि कोरोना वायरस की नई किस्म से बचने के लिए तमाम इकदाम मुकम्मल कर लिए हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का निज़ाम जो बहुत मौसर साबित हुआ है,
लेकिन पिछले चंद हफ्तों में क्योंकि मर्ज जो है वो कम हो गया था तो उस पर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं थी, तो उसको फौरी तौर पर दोबारा से रिजुविनेट किया जा रहा है, यानी उसमें तेज़ी लाई जा रही है, उसके अंदर जो है तवज्जो ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। वज़ीर आज़म के माविन खसूसी से है डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि NCOC मुल्क भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल को तफसील से मॉनिटर कर रहा है। उन्होंने कहा कि इदारे के इक़दामात और अवाम के ताउन की वजह से कोरोना वायरस को शिकस्त दी है। बहुत से यूरोपीय ममालिक में वायरस जो है उसकी दोबारा से आउटब्रेक्स और उसका इजाफा नज़र आ रहा है, और आपने देखा होगा और अगर आपने न्यूज़ पे गौर किया हो तो ये चीज़ वाज़ेह है कि उनमें से बेशतर जो तादाद है इन्फेक्शंस की, जो ख़ास तौर पे हस्पताल जा रहे हैं, जिनकी अमवात हो रही हैं, उसका ताल्लुक उन लोगों से है जो उन ममालिक में भी जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट दुनिया में तेजी से फैल रहा है। इससे बचाव के लिए जरूरी है कि वैक्सीनेशन लगवाई जाए और एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल किया जाए। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से डेनमार्क की सफ़ीर लिज रोज़नहोम ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में पायदार अमन की कोशिशें जारी रखेगा। अफगान शहरियों बिलखुसूस बच्चों और ख़वातीन को अशिया ज़िंदगी की अशद ज़रूरत है। उन्होंने तशवीश का इजहार किया वसाइल की कमी के बायस अफगानिस्तान में कहीं संगीन बहरान न हो जाए। बैनुल-अक़वामी बिरादरी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगान शहरियों की मदद करे। डेनमार्क की सफ़ीर अफगानिस्तान में पायदार अमन के ख्वाहिशमंद हैं और इस हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। मुलाकात में पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान ताल्लुकात को कसीरुल-जहती बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा और पाकिस्तान डेनमार्क के मुख्तलिफ शोबों में आला महारत से इस्तिफ़ादा करेगा। वज़ीर रेलवे आज़म खान स्वाति ने कहा है कि रियासत मदीना के तस्वुर पर वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन मुल्क के पसमानदा तबके का समाजी और इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। वो इस्लामाबाद में रेलवे के कम आमदन मुलाज़मीन को अख़ुवत फाउंडेशन के ज़रिए घरों की तामीर के लिए बिलासूद कर्ज़ों की फ़राहमी के हवाले से मुफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वफाकी वज़ीर रेलवेज़ ने कहा कि रेलवे की कारकर्दगी में इजाफ़ा और उसके मुलाज़मीन की फ़लाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। नए टेक्नोलॉजी के ज़रिए पूरे रेलवे के निज़ाम को रीवैम्प कर रहे हैं, जहां से हमारे एब्सेंटी और गोस्ट मुलाजमीन अफसर जो है इंशाल्लाह ताला वो अपनी मौत खुद मरेंगे, और जो काम करने वाले हैं उनको हम सर पे उठाएंगे खुदा के फजल से, इसलिए कि उनकी वजह से आज किसी भी वक्त आप देख लें 100 से ज़्यादा ट्रेनें इसी ट्रैक के ऊपर पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं। तकरीब से खिताब में चेयरमैन अख़ुवत फाउंडेशन डॉक्टर मोहम्मद अमजद ने कहा कि अख़ुवत फाउंडेशन घरों की तामीर के लिए अब तक 17,000 से ज़ायद बिला सूद कर्जे फराहम कर चुकी है। इस मौके पर पाकिस्तान रेलवेज़ और अख़ुवत फाउंडेशन हुकाम के दरमियान रेलवे के कम आमदन मुलाजमीन को घरों की तामीर के लिए बिला सूद कर्जों की फराहमी के हवाले से दस्तखत हुए। वफाकी वज़ीर मुआसलात मुराद सईद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लालचंद मलिक की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। इस मौके पर वीडियो बयान में मुराद सईद ने कहा कि वो 5 दिसंबर को सिंध कल्चर डे के मौके पर उमरकोट की रैली में शिरकत करेंगे और सिंध के अवाम और अपने कारकुनान से सिंध के मसाइल पर बात भी करेंगे। इंशाअल्लाह सिंध कल्चर डे के मौका पे 5 तारीख बरोज़ इतवार 10 बजे इंशाअल्लाह उमरकोट हम आएंगे। अपने कारकुनान से, सिंध के लोगों से उमरकोट के मसाइल के ऊपर, सिंध के मसाइल के ऊपर बात भी करेंगे, वफाकी हुकूमत के इक़दामात से आगाह भी करेंगे और इंशाअल्लाह सिंध कल्चर डे के हवाले से रैली और अपने कारकुनान से वहाँ पे खिताब भी करेंगे। तो इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी 5 तारीख को सुबह 10 बजे उमरकोट में। लालचंद मली ने कहा कि वफाकी वज़ीर मुआसलात उमरकोट के अवाम को बताएंगे कि गुज़िश्ता 15 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध के साथ क्या खिलवाड़ किया। वफाकी वज़ीर बराए कम्युनिकेशन और इमरान खान के टाइगर मुराद सईद साहब 5 दिसंबर बरोज़ इतवार उमरकोट तशरीफ़ ला रहे हैं। उमरकोट माली हाउस से सुबह 10 बजे हम रैली की सूरत में प्रेस क्लब उमरकोट पहुँचेंगे, जहाँ पर हम सिंध के सकाफती दिन जो मुख्तलिफ उन्वानों के तहत मनाया जा रहा है, सिंधु तुम्हें मुझो साह तालीम प्रायो सिंध सवारियो सरदारी निज़ाम नामंजूर, तो ये उनमें शिरकत करेंगे और उमरकोट की आवाम को बताएंगे कि गुज़श्ता 15 सालों में मौजूदा जो हुकूमत है सिंध में, उनसे सिंध के साथ क्या किया है। इस मौके पे मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब भी खिताब फरमाएंगे। उमरकोट की आवाम आप सबको दावत है
کہ آپ آئیں, ہم پیدل ریلی کریں گے, مراد سعید صاحب کے ساتھ ریلی کریں گے, یہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور تبدیلی پسندوں کا ساتھ دیں. پاکستان زندہ باد. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ دور حاضر میں میڈیا کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے, جو نہ صرف عوام کو ہمہ وقت باخبر رکھتا ہے بلکہ ان کے مسائل اور مشکلات سے بھی حکومت کو آگاہ کرتا ہے. کوئٹہ میں بلوچستان ڈیلی نیوز پیپر ایڈیٹرز کونسل کے نمائندہ وفد سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اخباری صنعت کو درپیش مسائل حل کیے جائیں گے اور آپ لوگوں کے تحفظات دور کیے جائیں گے. ایڈیٹرز کونسل کے نمائندہ وفد نے مسائل کے حل کی یقین دہانی پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ شاہراہوں کی تعمیر امن اور ترقی میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے. صوبائی حکومت صوبائی پی ایس ٹی پی کے منصوبوں کے لیے فنڈز فراہم کرے گی. کوئٹہ میں اجلاس کے دوران انہوں نے کہا کہ شاہراہوں کی تعمیر سے گوادر بندرگاہ ملک اور صوبوں کے دیگر حصوں سے منسلک ہو جائے گی. وزیر اعظم عمران خان نے این ایچ اے کی زیر تعمیر شاہراہوں اور وفاقی پی ایس ٹی پی میں شامل سڑکوں کے فنڈز کی بروقت اجرا کی یقین دہانی کرائی ہے. چیف انجینئر سی این ڈبلیو نے اجلاس کو مکران ڈویژن میں ساؤتھ بلوچستان پیکج اور وفاقی اور صوبائی پی ایس ٹی پی کے جاری منصوبوں کی پیش رفت پر بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نچلی سطح پر اختیارات منتقل کر کے عوام کو بااختیار بنائے گی, جس سے ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا. لاہور میں صوبائی وزیر بلدیات میاں محمود الرشید سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ حکومت نے نئے بلدیاتی نظام کی منظوری دے دی ہے, جس سے لوگوں کے مسائل ان کے گھروں کے نزدیک حل ہوں گے. سردار عثمان بزدار نے کہا کہ پی ٹی ایم مسترد شدہ مایوس عناصر کا غیر فطری اتحاد ہے, جو صرف ذاتی مفادات کا تحفظ چاہتی ہے. اس موقع پر صوبائی وزیر بلدیات نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپنے ادارے کی کارکردگی کے حوالے سے آگاہ کیا. پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں گزشتہ رات 4 صدہ میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کے تناظر میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. بریفنگ میں بتایا گیا کہ بعض عناصر اور جرائم پیشہ افراد نے عوام کو سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر اکسایا. وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو واقعے میں ملوث تمام شرپسند عناصر کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ پرامن رہیں اور قانون کو اپنا راستہ بنانے دیں. کچھ مزید خبریں بھی شامل کریں گے کیبنٹ آور میں ایک بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we humans know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. جب تک مسلمان دنیا مل کے اس کا پریشر نہیں ڈالے گی مغرب ممالک کے اوپر, یہ مشکل رہے گا ہمارے لیے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جی آزادی رائے. It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our Holy Prophet. مجھے فخر ہے اس کا کہ پاکستان سب سے زیادہ اس نے اس چیز کو اٹھایا. I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. کہ میرا جو نوجوان ہے پاکستان کا, میں صرف یہ چاہتا ہوں ان کا نمبر 1 رول ماڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے. ویلکم بیک ناظرین. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے مختصر مدت میں صحت کے شعبے میں انقلابی اصلاحات متعارف کروائی ہیں. ان اصلاحات کا بنیادی مقصد عوام کو صحت کی معیاری سہولیات فراہم کرنا ہے. خیبر پختونخوا ملک کا پہلا صوبہ ہے جس نے عوام کے لیے یونیورسل ہیلتھ کوریج کا احاطہ کیا ہے. تیمور سلیم جھگڑا وزیر صحت خیبر پختونخوا نے یہ گفتگو پی ٹی وی نیوز کے پروگرام کیبنٹ آور سے خصوصی گفتگو میں کہی. ہم نے 40 ملین یعنی 4 کروڑ لوگوں کو پورے پاکستان میں
500 से ज़ायद पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 10 लाख रुपए फ़ी ख़ानदान फ़ी साल की इंश्योरेंस दी है। ये इतना बड़ा कदम है कि ये अमेरिका जैसे मुल्क में आज तक नहीं हुआ। पख्तूनख्वा ने कर लिया है 20 अरब रुपए से ज़्यादा हर साल। लेकिन क्यों? क्योंकि जब कोई गरीब या कोई मिडिल क्लास आदमी बीमार हो, उसको घर बेचना पड़े, गाड़ी, जायदाद, जेवर और प्रॉपर्टी तकलीफ़ के वक्त में, तो वो हुकूमत का काम है। और ये ही वो प्राइम मिनिस्टर साहब का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विज़न है कि वो एक फलाई रियासत मदीना के मॉडल पे बनाना चाहते हैं, जिसमें गरीब और आम आदमी को वो सहूलत मिले जो कि मालदार आदमी अपने पैसों से ले सकता है। लेकिन ये वाइड अचीवमेंट नहीं है। 2000 से ज़्यादा डॉक्टर्स ऐड किए हैं। हमने जो है अपने BHUs के सिस्टम पे काम किया है, जहाँ पे हमारी OPD तकरीबन डबल हो गई है। और अपना जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर के रिवैम्प का प्रोग्राम है, उसमें हमारी 1000+ BHUs, RHCs, डिस्पेंसरीज़ वो सारी रिवैम्प होंगी। सब में जो है वो डॉक्टर्स होंगे। कुछ जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, ज़्यादातर गवर्नमेंट खुद ही चलाएगी, उनमें भी क्वालिटी इलाज मिलेगा। सेकेंडरी हेल्थ केयर में हमने सिर्फ हम सेकेंडरी हेल्थ केयर में हम 32 हॉस्पिटल्स जो है वो तकरीबन 20 अरब रुपए की लागत से अगले 2 साल के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ला रहे हैं। सिर्फ पिछले साल में हमने पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जिसको मैं पूरे मुल्क का बेहतरीन कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट कहूँगा, लेडी रेडिंग का 500 बेड का नया ब्लॉक, जो कि पब्लिक सेक्टर में पूरे पाकिस्तान में सबसे जदीद हॉस्पिटल यूनिट है। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में 1 लाख स्क्वायर फुट पे नया OPD ब्लॉक, नया विमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल नौशहर 4 सद्दा, मर्दान में DHQ का नया विमेन ब्लॉक, तकरीबन 20 हॉस्पिटल्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में हमारे फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट्स में, कबायली डिस्ट्रिक्ट्स में, चित्राल में जो चला रहे हैं और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस दे रहे हैं। और फिर आखिर में, जबकि और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन शायद जो सबसे बड़ी ऑपरेशनल अचीवमेंट है हेल्थ सिस्टम की, वो है जिस तरीके से हमारे सिस्टम ने ये कोविड की वबा का जो मुकाबला किया। तो मेरे ख्याल में एक इतने छोटे सूबे में जहाँ पे प्राइवेट हेल्थ केयर का सिस्टम भी उस तरीके से नहीं मौजूद जो कराची या लाहौर या इस्लामाबाद में हो, तो जो हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स ने किया है वो आप इंडिया में हालात दे सकते हैं। सड़कों पे लोग मर रहे थे, इतनी अमवात हुई थी कि वो गिन भी नहीं सकते थे। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ केयर स्टाफ, हमारे हेल्थ सिस्टम ने मुकाबला किया। एक वक्त में लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में तकरीबन 500 पेशेंट्स थे, पूरे पाकिस्तान में कहीं और 300 पेशेंट्स भी नहीं थे। लेकिन जब कोविड पीक पे भी था तो वो एक अचीवमेंट थी। फिर हमने अभी तकरीबन 20 मिलियन वैक्सीनेशन डोजेस, तकरीबन 60% आबादी को कम से कम 1 डोज़, और इंशाल्लाह साल के ख़त्म होने से पहले 70% तक ले जाएंगे। ये देख लें, पोलियो में 1 साल से ज़्यादा से कोई केस नहीं आया। तो ये मैं बिल्कुल भी ना कहना चाहता हूँ, ना मुझे कहने का हक है कि हमारा हेल्थ सिस्टम परफेक्ट हो गया है। हमें बहुत काम करना है, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस से कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत, चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब की क़यादत और अनफ्लिंटिंग सपोर्ट से हमने बहुत काम किया, और इंशाल्लाह अगले 2 साल में इससे भी ज़्यादा काम करके दिखाएंगे हेल्थ केयर में। दोबारा दिसंबर में कैंप ज्वाइन करना है। होपफुली वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल WBC और वर्ल्ड टाइटल के लिए WBA
एलिमिनेटर दोनों साथ में यूनिफिकेशन के लिए फ़ाइट करूँ इंशाल्लाह रमज़ान के बाद। अच्छा वसीम, ये बताइएगा, लास्ट टाइम आपने फाइट नहीं लड़ी थी जिसकी वजह से बेल्ट आपसे वापस ले ली गई थी जी, आप कितनी जल्दी चाहेंगे जल्द आपको कोई अपना कंटेंडर मिले, ओपोनेंट सब खेलें और फिर आगे बढ़ते चले जाएं? हमारी बात चल रही है मेरे मैनेजमेंट और जो मेरे प्रमोशन है प्रोबेलम उनके साथ। होपफुली हम ये सोच रहे हैं कि रमज़ान से पहले अपना मैं WBC का जो मेरा टाइटल है उसको पाकिस्तान में ही डिफेंड करूं इंशाल्लाह, जो कि बड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए, या फिर उसके रमज़ान के बाद फिर हम वर्ल्ड टाइटल के लिए फ़ाइट करें इंशाल्लाह। ये बता दिए कि हमेशा उनकी सरपरस्ती नहीं मिलती है एथलीट्स को, इस बार भी कुछ ऐसे ही है, आप यहाँ मौजूद हैं, कोई स्पोर्ट बोर्ड से नहीं है, कोई खुद सरपरस्ती, कितना डिमोटिवेट करता है? आप अपनी आँख सुझाकर आ गए लेकिन कोई आपकी हाथ रखने वाला है? देखिए मतलब पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के DG स्पोर्ट्स ने मुझे फ़ोन किया, अप्रिशिएट किया काफ़ी, और उनके लोग भी आए हैं यहीं पे, तो मैं तो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बात चली हुकूमत की, गवर्नमेंट की, मुझे कुछ पता नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में दिन प दिन जो इस गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स काफ़ी नीचे आ रहा है, हमारी स्पोर्ट्स काफ़ी ख़त्म हो रही है। जैसे हमारे ओलंपिक के स्पोर्ट्स है, बॉक्सिंग है, एथलेटिक है, हॉकी है, सब कुछ, तो गवर्नमेंट उसको बिल्कुल भी लुक आफ्टर नहीं कर रहा। तो मतलब ये उनको करना चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद स्पोर्ट्समैन है, उसको ये करना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ हमारी स्पोर्ट्स इतनी खास नहीं है। जैसे कि जो वज़ीर कह रहे हैं वो भी जो आगे उन्होंने काफ़ी बातें की थी कि हम स्पोर्ट्स को फ़रोग़ दे रहे हैं और स्पोर्ट्समैन को भी जो भी ज़रूरियात को पूरा करेंगे, लेकिन कितनी मायूसी आपको कि वो आपको रिसीव करने के लिए यहाँ पर नहीं आया, अभी तक बड़ा टाइटल जीत कराया। देखिए ये पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम WBC सिल्वर चैंपियन बनकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पहुंचने पर, कराची एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं अपने आइंदा के प्लान्स के हवाले से, आइंदा की चैंपियनशिप के हवाले से। WBC के लिए उन्होंने अब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मोहम्मद वसीम इस हवाले से अपने अज़्म का इजहार भी कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान का परचम रोशन करने के लिए पुरअज़्म है। ये मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं। जब मोहम्मद वसीम पाकिस्तान पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, उन्हें खुशामदीद कहा गया। उन्होंने कामयाबी हासिल की, रॉबर्ट बरेरा को शिकस्त दिया था दुबई में, और 12 राउंड्स का वो मुकाबला जिसमें मोहम्मद वसीम पाकिस्तान के लिए WBC सिल्वर चैंपियन का एजाज़ हासिल करने में कामयाब हुए। उन्होंने अपनी इस कामयाबी को नाम किया था कौम के। जी नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना काफ़ी नहीं है, उनको असम्बलियों में भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। बर्मिंघम में लॉर्ड मेयर मोहम्मद अफजल और ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मुलाकात के दौरान चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क व कौम का फ़ख्र हैं और हम इनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कौमी सूबाई असम्बली में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मखसूस नशस्तों की तजवीज़ देते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नशस्तों में इजाफा किया जाए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि भारत के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यूरोपीय ममालिक की सियासत में भी आगे बढ़ना होगा। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा ने कहा है कि कौमी शाहराहों का जाल बिछाना और आवाम को आरामदेह सफ़र की सहूलियात फराहम करना वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। कोयटा में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से ब्रीफिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा कि सूबे बलूचिस्तान में नकलो हमल के मौसर तरीन ज़राए सड़कें ही हैं, उन पर ट्रैफिक हादसात में कमी लाने के लिए जामे हिकमत अमली वज़ा करने की ज़रूरत है। उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर जोर दिया कि बलूचिस्तान में ज़ेर तामीर कौमी शाहराहों पर काम की रफ्तार को तेज़ किया जाए और मयारी मटीरियल का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान से कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। गवर्नर ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को बतौर कोर कमांडर पेशावर तैनाती पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल समेत अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और सरहदी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सूबे में बेरी, शहद, जैतून और ज़ाफ़रान के वसी पैमाने पर काश्त मनसूबे पर भी इज़हार इत्मीनान करते हुए मनसूबे की कामयाबी के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफाक किया गया। नाज़रीन, कैबिनेट आवर से आज अब जो स्टोरीज हमने आप तक पहुंचाई, आज अच्छी खबरें थी नाज़िया। एक तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी रुझान है वो काफ़ी मस्बत रहा और 1200 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इसके अलावा सबसे अच्छी खबर थी वो सफारी, हेली सफारी, हेलीकॉप्टर की सवारी आप कर सकते हैं इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान से इस्लामाबाद। एक ही दिन में चाय पीकर आप वापस आ सकते हैं। इसके साथ ही कैबिनेट आवर का वक्त मुकम्मल हुआ। रिजवान अली अहमद और नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिएगा।